Hi everyone, welcome to Infinite Tarot, Triple One Hindi. So today we're gonna do reading of Virgos. It will be a bonus reading for the month of November, for the rest days of November 2020. So let's see what's going to come in your love life. What are the changes that will be there in your love life, and what are the feelings of your partner? And we'll also take one guidance card in your relationship. तो चलिए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है एंड विल ऑल्सो टेक सम गाइडेंस क्या ब्लॉकेजेस हैं. दिट विल बी अ बोनस रीडिंग, सो इट विल बी अ वेरी शॉर्ट रीडिंग, नॉट अ लॉन्ग रीडिंग एज वी वर डूइंग अर्लियर. सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. ओके, सो चलिए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है और क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की, व्हाट आर द ब्लॉकेजेस, एंड विल ऑल्सो टेक वन कार्ड फॉर द गाइडेंस. तो लेट्स सी, आइए देखते हैं कि वर्गोस की लव लाइफ में अभी के लिए क्या चल रहा है. सो आई वुड टेक वन कार्ड फॉर द प्रेजेंट, one card for the past and one card for the future. So this would be only for the rest days of November 2020 because it is a bonus reading. So let's take one card for the present first, past first. Okay, one card for the past, for the love life of Virgos. I will take some card for the past, for the love life of Virgos. Also remember, this is a journal reading, so this may or may not resonate with everyone. So please take those messages which resonate with you, और जो नहीं resonate करते उन्हें आप छोड़ दीजिए. Okay, one card I would take for the present position. What's the present position? Okay, so it is two of swords, and one card I will be taking for the future, that is for the remaining days of November 2020. What's going to happen in your love life? One card for the future. Wow, lovers, very good, awesome card. So let's see what are your feelings for your partner. आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के लिए? ओके, सिक्स ऑफ कप्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, देन यू हैव एट ऑफ पेंटिकल्स, राइट. इसके बाद आइए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं. लेट्स टेक थ्री मोर कार्ड्स. ओके, दैट्स गुड. इस किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, wow, then you have sun card. Okay, okay, queen of pentacles, right, right. Okay, Virgo, so we are done with the reading. वर्गोस, इफ़ आई सी व्हाट्स द करंट सिचुएशन कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि एक तो बहुत ज़्यादा मुझे इनडिसिसिवनेस की एनर्जीज आ रही हैं. मतलब समवन आउट ऑफ यू बोथ इज़ वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड. एक कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है. अदरवाइज डेफिनेटली यू आर डीलिंग विद योर सोलमेट राइट नाउ. आप जिसके साथ भी अभी डील कर रहे हैं वो आपका सोलमेट है. But I'm feeling like there's a energy of confusion. Either you are confused or your partner is confused, and I'm getting the energy that this is basically your energy. This is your energy, Virgo. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ना किसी चीज़ को लेके ना काफ़ी ज़्यादा confused हैं. राइट, एंड आई एम, इफ़ वी टॉक अबाउट दी साइंस फर्स्ट, तो अगर हम साइंस के बारे में बात करें तो आई फील लाइक यू माइट बी डीलिंग विद water sign. You can be dealing with the Cancer, Scorpio or Pisces, or you can also be dealing with the air sign,
like you might be dealing with Gemini, Libra एंड Aquarius, ठीक है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि डेफिनेटली आप ना अपने सोलमेट को लेके कंफ्यूज हैं। आई थिंक यू लव योर सोलमेट अ लॉट। देयर इज if I just see like what are your energies for your soulmate, this is someone with whom you have been dealing in the past। आप पास्ट में भी आप काफ़ी देर से अपने करंट पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हैं, एंड आई फील लाइक यू हैड सम वेरी गुड मेमोरीज। आपकी अपने पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छी मेमोरीज हैं, एंड राइट नाउ ऑल्सो यू माइट बी इन अ नॉस्टैल्जिक मूड। नॉस्टैल्जिक मूड मीन्स आप हो सकता है आप उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हों। यू माइट बी थिंकिंग अबाउट द पास्ट थिंग्स दैट हैपन्ड, एंड लाइक यू माइट बी just thinking about the moments that happened in the past। I also feel Virgo कि it might be possible कि या तो past में और in the present, I feel it's in the present। There are some kind of conflicting energies happening between you both। I feel it might be possible sometimes you are ready for the relationship and sometimes they are not ready, but right now I feel it's your energy who is not so much ready। कहीं ना कहीं यू आर वर्किंग अ लॉट ऑन योर रिलेशनशिप, लाइक आप बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं। आप रियली चाहते हैं कि जो चीज़ें हैं वो मूव करें, आप चाहते हैं कि जो चीज़ें हैं वो वर्कआउट हो जाएं किसी तरह, बट कहीं ना आप अपने आप को भी मुझे ऐसे लगता है समझ नहीं पा रहे। यू नीड टू रीड योर ओन माइंड फर्स्ट। आपके माइंड में एक ना क्लैरिटी नहीं है, एक स्ट्रगल सी चल रही है। लाइक यू समटाइम यू एक्चुअली व्हाट आई फील इज़ कि आपको ऐसा लगता है कि आपने पार्टनर ने आपके साथ बहुत ज़्यादा जस्टिस नहीं की, कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स का उतना ध्यान नहीं रखा गया, या फिर दे हैव बीन वेरी ईगोइस्टिक विद यू, दे हैव काइंड ऑफ like taken advantage of you। this is something that I feel। उनको लाइक यू माइट बी फीलिंग कि आपके पास्ट में आपके साथ दे हैव नॉट बीन वेरी गुड, बट साइमल्टेनियसली यू रियली वांट द रिलेशनशिप टू वर्क। आप चाहते हैं कि आप वो वर्क करें, एंड यू आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड, एंड आई फील यू आर ऑल्सो मैनिफेस्टिंग अ लॉट। आप ओवरऑल जो है ना आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो आई फील वर्गो इट्स लाइक जो ओवरऑल एनर्जी भी है वो ऐसी है कि यू आर लाइक काइंड ऑफ फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, बिकॉज जैसे मैंने बताया था कि there is a lack of clarity in your own mind, there is also a lot of indecisiveness। So with this, so to bring the positions in a more clear state, I feel कि आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप पॉजिटिव मे बी हो सकता है एफर्मेशन सोच रहे हो, एंड यू आर रियली वर्किंग ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड। आप में से कुछ जो हैं वो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर अपने वर्क कर रहे होंगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश कर रहे होंगे, या फिर आप पॉजिटिव सोच रहे होंगे, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा अपनी थॉट्स उसको दे रहे होंगे, है ना। मतलब इट्स लाइक आप सोच भी रहे हैं और आप एक्शंस भी इस तरह से करेंगे कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप है वो आपका वर्क करे, ठीक है। एंड आई फील बिकॉज आई हैव गॉट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, बोथ एनर्जीज आई एम गेटिंग, सो आई एम फीलिंग कि इट्स लाइक you both are on the same side। आपकी जो एनर्जेटिकली आप इस टाइम दोनों सेम लेवल पे हैं। you both are kind like focused on each themselves, है ना। आप भी अगर आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं बिकॉज आप भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। सिमिलरली आई एम फीलिंग लाइक योर पार्टनर इज ऑल्सो नॉट वेरी रेडी to take the responsibility, he's also not yet ready to take the responsibility, but he or she, your partner, does want to marry you, he does want to marry you, he wants to share your life, but somehow I feel he is not ready for the responsibility। He may be taking the relationship as a burden, but he is he's also really working hard on his finances। इट माइट बी पॉसिबल कि वो अभी अपने फाइनेंसिस को लेके या तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं और बहुत ज़्यादा लाइक अपने फाइनेंसिस को, अपने काम को, अपने करियर के ऊपर वो इतना ज़्यादा फोकस्ड हैं कि उन्हें अपना रिलेशनशिप हो सकता है लाइक उनके पास टाइम ना हो अपने रिलेशनशिप को देने के लिए, या फिर अगर उनके पास टाइम भी है तो ही इज़ नॉट वेरी रेडी फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ही डज वॉन्ट टू शेयर हिज लाइफ विद यू, ही डज वॉन्ट टू मैरी यू, ही डज वॉन्ट टू हैव अ फैमिली विद यू, बिकॉज समवेयर ही फील्स दैट you are someone who is very special for your partner, और उनको लगता है कि आप दोनों soulmates हैं, and they really see abundance, actually they really see abundance in the relationship। उनको लगता है कि this relationship can bring the abundance, bring the prosperity in their life that they are actually hoping for,
एंड आई फील इट्स इफ इट्स फॉर यू, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी एनर्जीज में ऐसा है कि यू रियली आर वर्किंग हार्ड बट यू आर नॉट वेरी पॉजिटिव इन द रिलेशनशिप, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट के बारे में जो है ना वो सोच रहे हैं. यू आर रियली वर्किंग हार्ड मीन्स यू वॉन्ट दिस टू वर्क, यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, यू आर इन्वेस्टिंग योर एनर्जी, मे बी यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू सेट द थिंग्स राइट. आप चाहते हो कि चीज़ें सही हो जाएं और उसके ऊपर आप काम भी कर रहे हो, बट आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लेके जो है ना वो पॉजिटिव नहीं है. बट बी वेरी श्योर कि आप और आपके पार्टनर जो हैं वो सोलमेट्स हैं. यू बोथ रियली लव ईच अदर, बट आई फील योर पार्टनर इज स्टिल एडमिटिंग, बट वो को आप अभी एडमिट नहीं करना चाहते हैं. यू आर नॉट एडमिटिंग एंड यू नीड टू बी मोर ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, ओनली देन यू कैन गेट द क्लैरिटी. दैट्स वाई आई फील यू आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन योर सेल्फ. आप भी अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस टाइम फोकस्ड हैं, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. हो सकता है अपने आप भी इस टाइम अपने बिजनेस और करियर या जॉब के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट कमिंग टू द राइट कंक्लूजन. आप अपने रिलेशनशिप के कंक्लूजन पे जो है ना वो नहीं आ पा रहे हैं. एंड एज फार एज ब्लॉकेजेस आर कंसर्न, तो मुझे ब्लॉकेजेस में ये भी यही एनर्जीज आ रही हैं कि वन आउट ऑफ यू बोथ, एंड विच आई फील वर्गो इट्स योर एनर्जी. आप अपने रिलेशनशिप से ना काफ़ी ज़्यादा विड्रॉन है, लाइक यू हैव गिवन अप. As I was saying कि in the past your relationship was not very good, maybe there was some kind of mini tussles या छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट्स, या आप कह लो कि छोटे मोटे झगड़े हुए हैं कम्युनिकेशन लेवल पे, हो सकता है आपकी फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, या वट एवर सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वर देयर. तो जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि इतना कुछ काम करने के बावजूद, इतना वर्क करने के बावजूद भी रिलेशन जो है वो वर्क नहीं कर रहा. एंड दैट्स वाई यू आर like withdrawing, and you really want to move for a higher purpose in your life. You are like withdrawing yourself from the relationship and you feel कि things have come hit their rock bottom. ठीक है, तो मुझे फिर वो लग रहा है कि इट्स योर एनर्जी. यू आर एक्चुअली फीलिंग कि जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई हैं, चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी हैं, एंड यू आर काइंड ऑफ कि आपको अब रिलेशनशिप में जो है वो कोई होप नहीं नज़र आती. बट लेट्स टेक वन कार्ड फॉर द लॉन्ग टर्म फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप. लेट्स टेक one card for the long term future of your relationship. Okay, so I wanted one card but there are three cards, so we'll take all the cards. So okay, so this is a strength card, this is a strength card, and then it's page of cups, and then it is emperor, and then it is emperor card. So Virgo, इफ़ आई सी द लॉन्ग टर्म फ्यूचर, तो मुझे ऐसे लगता है कि यू नो इन द लॉन्ग टर्म फ्यूचर वट एवर इज़ हैपनिंग राइट नाउ, मे बी ये आपका एक कार्मिक कनेक्शन है जिससे आप अभी गुजर रहे हो, और लॉन्ग टर्म में आपको ये सारी चीज़ें एक ऐसी स्ट्रेंथ देंगी, आपको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगी ना कि आप बिल्कुल यू विल बी एज स्ट्रॉन्ग एज आयरन. ठीक है, यू विल बी एज स्ट्रॉन्ग एज आयरन. एंड अगेन आई एम गेटिंग ऑपोजिट एनर्जीज, एंड आई स्ट्रांगली फील दैट यू माइट बी डीलिंग विद स्कॉर्पियो. आप डेफिनेटली कोई ना कोई वाटर एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं. It can also be a Scorpio. It can also be a Scorpio definitely, or it can be a Capricorn also. It can be a Scorpio, Capricorn, or a Leo. And again, you can also be dealing with a Virgo. There are high chances you can also be dealing with the Virgo, right? सो आई फील इज कि ऑल दैट चेंजेस जो इसमें हो रही हैं, दिस विल नॉट ओनली मेक यू स्ट्रॉन्ग बट दिस विल मेक योर पार्टनर स्ट्रॉन्ग एज वेल, राइट? एंड वन आउट ऑफ टू, ठीक है, आप दोनों में से कोई एक, विच आई अगेन फील इट इज़ यू आर गोइंग टू बी you are going to be so strong not only mentally but emotionally and even at a spiritual level. आप एक spiritual level पे भी strong होने वाले हैं, and definitely I feel your partner is going to propose you or again give you a love offer in the coming time, which I feel you won't reject this time. अभी आप में वो strength नहीं है, जैसा कि मैंने बताया था, आप बहुत indecisive हैं, आप confused हैं अपने relationship को लेके, but the next time they give you a love offer you won't be confused, you will have a total clarity, और आपके अंदर वो strength आ जाएगी कि आप अपने relationship को सोच सकें और उसमें अच्छे से decision making ले सकें. And simultaneously this strength will also come in your partner. Right now they are having in 10 of wands energy, means they are not ready for the responsibility, but they will also be very ready to take the responsibility of the relationship. They will not take the relationship as a burden anymore. उनको ये एक
एक बर्डन की तरह नहीं लगेगा और उनको ऐसा नहीं लगेगा कि दे वांट टू गिव अप। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, वो बहुत अथॉरिटी के साथ आपको जो है दे विल मूव टुवर्ड्स यू, एंड इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव फ्यूचर है आप दोनों का इकट्ठे। नाउ लेट्स टेक वन गाइडेंस कार्ड फॉर यू, one guidance card for Virgos to make their love life better. One guidance card for Virgos to make their love life better. One guidance card for Virgos to make their love life better. Okay, it's King of Cups, it's Three of Pentacles. I would take only King of Cups. किंग ऑफ कप्स, ओके। तो मुझे ऐसे लगता है गाइडेंस कार्ड यही है कि यू बोथ डेफिनेटली जो मेल पर्सन है आपके रिलेशनशिप में, दैट पर्सन नीड्स टू इन्वेस्ट सम टाइम, दैट पर्सन नीड्स टू बी मोर नर्चरिंग एंड केयरिंग, and I feel that person is also very emotional, but somehow that person is kind of not caring for your emotions. And the guidance card is कि that person, या the male person especially in the relationship, if it's you or if it's your partner, you should look for the emotional aspects. आपको अपने partner की emotions की ज़्यादा कदर करनी चाहिए. That's what's coming in the guidance card. So let's take one more guidance card for you. See, fulfillment of wishes. So the same card I told you, the same C card we have got, fulfillment of wishes, जो फिर से हमें ये बता रहा है कि डेफिनेटली जो मेल पार्टनर है ना उनको बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी इमोशनल एंड सेंसिटिव, बट समहाउ दे आर नॉट टेकिंग केयर और दे आर निगलेक्टिंग द इमोशंस ऑफ देयर पार्टनर. सो आई फील इज कि दे शुड रियली केयर फॉर what their partner wants, and they should really care for their fulfillment of the partner, which is you, Virgo. I feel, Virgo, it's you. So definitely not only he, even you also should value the emotions of your partner, and you both should care for each other, and should actually look that what the other person is feeling, because right now आपकी energies ऐसी आ रही हैं कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर focused हैं, and you both are not really bothering what the other person is feeling. So the day this thing will start happening, the day you both will really start valuing each other's emotions, your relationship will start working, and it will be a hit. I am telling you, energies are very strong, and you really have strong karmic connections in the past. Okay, let's take one more guidance card for the Virgos. One more guidance card for the Virgos. Okay, memories of love. So next is memories of love. So after disruption it is memories of love, so which indicates that कि ये चीज़ें अगर ख़त्म नहीं होंगी, because even if the guidance card states कि even if you think of not going ahead in this relationship, तो इसके बाद भी जो आपकी memories हैं वो आपके, you both are going to remember each other for lifetime. Definitely you both will not forget each other, and I feel it's your energy, Virgo. Like right now you are already thinking a lot about the past memories. So let me take one more guidance card for you. ओके, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस. सो दैट इज अगेन जो हमारे पास पहले भी आया था कि आप वर्गो स्पेशली जो कंफ्यूज्ड हैं, आपको अपना माइंड बनाना चाहिए, एंड यू शुड टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड यू शुड मूव फॉरवर्ड. आप डरिए मत, एक अपना माइंड पक्का करिए, जो भी आपके पास चॉइसेस हैं उसको इवेल्युएट करिए और एक डिसीजन मेकिंग के साथ आगे मूव ऑन करिए. लेट्स टेक सम लव मैसेजेस फॉर वर्गोस. लव मैसेजेस फॉर वर्गोस. लव मैसेजेस फॉर वर्गोस. Okay, one more card. Right. Children. So your love life is affected by the children. So it's possible that there's some children around you which are affecting your love life. Unrequited love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. So that's what I told you ki right now you both are focused on each other and the attraction is missing in your relationship. Separation. The time apart from your partner is on the horizon. So the love messages are saying, so let's take one more card. The love messages are saying that it might be possible, because I told you कि जो current आपकी blockage भी आई है, that current blockage was 10 of swords and 8 of cups. इसका मतलब है कि अभी आप लोग स्पेशली वर्गो, आप ये सोच चुके हैं कि आपके रिलेशनशिप में अब कोई चेंज नहीं आएगी, सब कुछ खत्म हो चुका है, एंड यू आर कम्प्लीटली विड्रॉन. सो कुछ देर के लिए, एंड यू आर फीलिंग कि अदर पर्सन इज ऑल्सो नॉट केयरिंग फॉर यू. कुछ देर के लिए अगर आपकी सेपरेशन होती भी है
So still, because here also we have disruption card and here also we have separation card. So what I am getting is, what energies I am getting is कि आपकी separation कुछ देर के लिए होगी. And what I am feeling is कि November में भी आपकी separation रहेगी. ठीक है, November definitely you will be in a separated, because this reading is only for November. But उसके बाद के card में there is a wedding card. So I feel in December or in the coming months the things will again take a turn, and after all this, after the tower movements, maybe you both feel more strong. As I told you, in the long term future also ये reading आई है कि आप दोनों बहुत strong हो जाएंगे and you will really come forward towards each other again. And there is a wedding. This situation involves marriage. So I feel कि there is a marriage, because पहले भी आपके पास यही कार्ड आया था, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हैं. सो इट्स अ वंडरफुल रीडिंग ओवरऑल. तो you both are destined for each other, Virgo, right? So this is a journal reading, so take those messages which resonate with you. For personal readings you can reach out to me at my email id. Till then, bye bye, take care.